I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. Today, we are discuss about analysis and design of algorithm and the topic of job scheduling. So, what is the job scheduling? We can show that one example. So, you have given one example and solve the problems using job scheduling. You have given some jobs. You can show that number of jobs. You have given the deadline. It means the process which are completed in the time second. So J1 processes maximum allocation is 5, J2 is 3, and J4 is 2, and J5 now all the number of jobs we are completed in the deadline. So this is your profit in the each and every jobs. So now you have questioned the answer and find. Write the optimal schedule for the given the maximum profit. Are all the jobs is completed the optimal schedule? And third, what is the maximum on the profit? So this is the one basic question of job scheduling. Now we can start. So step number 1, sort all the jobs in the descending order for the profit. So this is your question. You have so that this is your jobs J1, J2, J3, J4, J5 and J6. So step number 1, sort all the jobs in descending order of the profit. So based on your profit, your jobs you have scheduled. So which is the profit is maximum. You can show that J4 is maximum. So you have find the first, then J1. So you have put second, then J3. So you can put third, then after J2, then after J5, and then after J6. Also put the deadline based on the job. So this is your J4 and job is our deadline is 2 and maximum profit 300. So you have put first. So now step number 1, schedule all the jobs in the descending order their profit. Based on the profit you have scheduled your job. So now value of the maximum deadline is 5. You can show that the maximum deadline is 5. So draw the Gantt chart for the maximum time of Gantt chart is unit. So you can show that 0, 1, 2, 3, 4, 5 because of the deadline is 5. So maximum deadline you have put the and draw the chart. We can we take each job one by one in the order and appreciate the step number 1. So we can place the job in the Gantt chart is possible from 0. So we can show that we can put or we can add the number of jobs in a Gantt chart based on the step number 1. So now we can start that. So we take, so you have this Gantt chart. Now we can put J4. Why? So we take the J4 because of based on the step number 1. Since the deadline is 2, so we can place the first MP cell before the deadline 2. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ब्लैंक Gantt चार्ट है. सपोज के मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. सो यू कैन शो दैट. तो मैं क्या किया, यहाँ पे Gantt चार्ट ड्रॉ किया हुआ है. तो आप क्या करोगे कि आपके पास स्टेप नंबर 1 है, इससे ही आपका प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगा. तो इसमें कुछ नहीं है, आप देख के जाइए कि आपने क्या किया, जॉब को शेड्यूल किया है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और डेडलाइन. तो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ कि J4 है, आप इस चार्ट में 0 से 2 में कहीं भी आप पुट कर सकते हो. इसका मतलब J4 को आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और 2 पे भी पुट कर सकते हो. लेकिन हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम डेडलाइन है उसका यूज करेंगे. तो अगर कोई शॉर्ट डेडलाइन होगी तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हो कि अगर मेरे पास J1 है तो आप डेडलाइन उसकी क्या है 5 है.
तो आप 0 से 5 में कहीं भी आप उसे पुट कर सकते हो, लेकिन हम उसे वहीं पुट करेंगे जो उसकी मैक्सिमम डेडलाइन है। जैसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सको और मिनिमम नंबर ऑफ जॉब से। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आपने देखा होगा ऑल द जॉब्स आपको दी हुई होगी उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ है उसी तरह से आपको डेडलाइन सेट करनी है। तो आपने इस टेबल को क्रिएट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, जो भी जॉब्स दी हुई है उसके डेडलाइन में आपको और वैल्यू को पुट करना है और उस जॉब को आपको पुट करना है। तो आप वो कैसे करोगे, अगर यहाँ पे J4 की डेडलाइन है 2, तो आप J4 को कहाँ पुट कर सकते हो, अब यहाँ पे भी पुट कर सकते हो 1 में और यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। और J1 में क्या है, तो आप 0 से 5 में कहीं भी आपको J1 की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेडलाइन। सो दैट्स व्हाई we can say that this is the job scheduling algorithm based on the deadline. So this is the importance। तो हम क्या करेंगे कि जो भी डेडलाइन है वो मिस ना हो उसी तरह से जॉब को शेड्यूल करेंगे। तो वी कैन स्टार्ट दैट। अब 0 स्टेप, तो हमने क्या किया, J4 है उसकी मैक्सिमम डेडलाइन है 2, तो आप कहाँ पे पुट कर सकते हो, 0 से 2 में कहीं भी। तो हम यूज करेंगे मैक्सिमम का, लास्ट कॉलम का, तो आप यहाँ पे पुट किए। ओके, हो गया। उसके बाद आएंगे J1, तो उसकी मैक्सिमम डेडलाइन है 5, तो आप 0 से 5 में कहीं भी पुट कर सकते हो। हम यूज करेंगे मैक्सिमम। क्या हो कि अब नंबर ऑफ जॉब्स होगी जो रिमेनिंग, उससे आप इजीली अलोकेट कर पाओगे रिमेनिंग बॉक्स में और रिमेनिंग टेबल वैल्यू में। सो यू हैव पुट द J1 वैल्यू इन द डेडलाइन 5. So we can show that you have put the deadline base for the job. So आप क्या करोगे, J1 को आप पुट कर सकते हो 0 से 5 में कहीं भी, तो आपने पुट किया है मैक्सिमम में। So because of you have scheduled number of jobs of the remaining portion, तो रिमेनिंग पोर्शन में आप जॉब शेड्यूल कर पाओगे। So you have put J1 in the 5 position because of the maximum deadline is 5. So you have put the 5. Now you can show that J3, तो आप कहाँ पे पुट कर सकते हो, 0 से 3 में कहीं भी। तो आपने कहाँ पे पुट किया है, आप देख सकोगे रिमेनिंग 2 एज इट इज है, आप 0 से 3 में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पोजीशन था 0 to 1 और 2 to 3, तो आपने पुट किया 3 में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस, आप कहीं भी पुट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पुट किया। उसके बाद आएगा J2, तो J2 में क्या है, उसकी भी डेडलाइन 3 है। तो आप क्या करोगे कि 0 से 3 में आप कहीं भी J2 को पुट कर सकते हो। तो आप कहाँ पे पुट करोगे, 0 to 1 में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पुट किया हुआ है। उसके बाद आएगा J5, तो आप 0 से 4 में कहीं भी पुट कर सकते हो और आप देख भी सकते हो कि बाकी की जो वैल्यू है वो पुट की गई है बेस्ड ऑन द जॉब। तो आप यहाँ पे पुट करोगे J5 को। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डेडलाइन है, तो क्वेश्चन भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि आपकी मैक्सिमम डेडलाइन है वो 5 है, तो उसमें से आप कितने नंबर ऑफ जॉब्स को अलोकेट कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ यू हैव प्रॉफिट यू हैव अर्न। तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि आप किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कि जिसकी कम डेडलाइन और मैक्सिमम डेडलाइन है उसी तरह से आप शेड्यूल करोगे तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सो वी कैन शो दैट ऑल द रिमेनिंग पोर्शन एंड द कवर द जॉब शेड्यूलिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि हाउ सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग जॉब शेड्यूलिंग। सो यू हैव गिवन सम नंबर ऑफ जॉब्स, यू हैव गिवन द सम डेडलाइन, यू हैव गिवन सम प्रॉफिट। सो स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट यू हैव शेड्यूल द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए उसी तरह से
मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मिनिमम। उसी तरह से आपको नंबर ऑफ जॉब को शेड्यूल करना है। तो आप देख सकोगे मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें क्या है, J4, so you have put first position, then after J1 you have put second, then J3 you have put third, then after all the remaining position। तो आपको इसी तरह से आपको पुट करना है। तो ये इजी स्टेप है। उसके बाद क्या करना है कि आपकी जो डेडलाइन है, आप देख सकोगे यहाँ पे डेडलाइन दी हुई है 5। तो आप एक गैंट चार्ट क्रिएट करिए जो 0 से 5 तक आए और उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इजी है। तो आपने ये गैंट चार्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको जॉब शेड्यूल करनी है। तो आप J4 को शेड्यूल कर सकते हो कहाँ पे, इस गैंट चार्ट में। तो क्या आप इसकी डेडलाइन है 2, तो आप 0 से 2 में कहीं भी आप पुट कर सकते हो। तो हमने कहाँ पे पुट किया, 2 में। सो बिकॉज ऑफ कि आपको किसी की डेडलाइन कम हो तो आप इजीली प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे और डेडलाइन भी मिस नहीं होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टास्क फॉर द शेड्यूलिंग कि आप जो भी डेडलाइन है, मैक्सिमम डेडलाइन, तो वहाँ पे पुट कीजिए। और अगर नहीं वहाँ पे है, कोई पोजीशन आ गई है, तो फिर आप प्रीवियसली कोई भी वैल्यू का और कोई भी टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन का। यहाँ के जो पोजीशन 1 है तो आपका उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव पुट J4 फॉर 0 to 2, तो मैंने पुट किया 2 में। उसके बाद डेडलाइन है J1 की 5, तो आप 0 से 5 में कहीं भी पुट कर सकते हो। मैंने पुट किया यहाँ पे, तो आप देख सकोगे मैंने पुट किया यहाँ पे और J1 पुट किया है। तो उसके बाद J3, 0 से 3 में आप कहीं भी पुट कर सकते हो। तो मैंने पुट किया J3 यहाँ पे। उसके बाद J2 आएगा, उसकी भी डेडलाइन 3 है, तो आप 0 से 3 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने पुट किया यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन ही रिमेनिंग है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया होगा कोई भी J4, तो यहाँ पे पुट होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अगर यहाँ पे डेडलाइन 2 होगी तो आप कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप सिर्फ सिंपल सा टास्क है, आपको डेडलाइन मिस नहीं करने है। तो आप 0 से 3 में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए J2 को, और J5 जिसकी डेडलाइन 4 है, तो आप 0 से 4 में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो आपने पुट करना है यहाँ पे जो पोजीशन है। सो ये हो गया आपका जॉब शेड्यूलिंग। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। नाउ ओनली जॉब्स यू कैन लेफ्ट इन द जॉब्स J6 ऑल द डेडलाइन इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा, J6 की जो डेडलाइन है वो मिस होगी। ऑल द शॉर्ट, आपने देखा होगा जो भी स्टेप है, इस डेडलाइन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाई। सो J6 की डेडलाइन है ऑलरेडी ऑक्यूपाई की गई है। बिकॉज ऑफ आप देख सकोगे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न करना है। तो इसका प्रॉफिट सिर्फ 100 है और इसका 200 और सॉरी इसका जो J4 का है वो 300 है। तो आप देख सकोगे कि किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सो नाउ स्टेप नंबर 1, यू हैव शेड्यूल फॉलोइंग क्वेश्चन और आंसर। आपका जो क्वेश्चन है, राइट द ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपने किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया है वो आपको लिखना है और कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो आपका स्टेप का आंसर जो होगा, सो यू हैव आंसर इज you have find the J2, J4, J3, J5 and J1 for the scheduling, and the maximum you have profit you have earned, and then all the jobs are not completed in the optimal schedule. This is because J6 is could not be completed within the deadline. तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी जॉब आप लिख सकते हो कि कौन सी जॉब जो यूज नहीं की गई है और डेडलाइन मिस हुई है वो है J6. So this is the importance. And then after you have find the maximum profit. आपका जो प्रॉफिट है J2, J4, J3, J5 and J1, तो आप J2 को निकाल दो। रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट है उसका आपको एडिशन करना है। तो उसका एडिशन करोगे तो आएगा 990। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये यहाँ तक आपको जाना है और कंप्लीट करना है प्रोसेस। So this is the job scheduling algorithm. I hope you have learned. Thank you all of you.